Hello my dear students, good morning everybody. So welcome to a new video on magnetic effects of electric current. So I have already uploaded two videos related to this chapter. So magnetic effects of electric current is nothing but a phenomenon in which the moving charge, that means a current carrying conductor, produces magnetic field all around it. So please I want to revise this chapter before going to the new section. Okay, so first of all, you see, if there is a charge over here, charge at rest, then it will produce electric field. So charge at rest, that means this is your charge at rest, produces only electric field, and the charge in uniform motion produces, that means it is moving with constant velocity, that means v is equal to constant. When a charged particle is moving with constant velocity, it produces both electric field and magnetic field. As inside a current carrying conductor, charge also moves with constant drift velocity. So this implies current carrying conductor produces magnetic field. But a current carrying conductor cannot produce electric field all around it, because a current carrying conductor is a neutral conductor. It is not charged. It is a neutral conductor. That is the reason for which current carrying conductor produces only magnetic effect. Okay, magnetic field all around it. And if the charged particle, this is my first case, this is my second case, and this is my third case. In the fourth case, if a charged particle oscillates, or in accelerated motion, then it produces electric field भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा. सो इसके ऊपर हमारा डिस्कशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होगा. ओके, एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस electric field, magnetic field, so also emits energy in the form of electromagnetic waves. Okay, so it is a separate chapter. Okay, fundamental concept will be given at the plus 2 level, but in the plus 3 level, when you will read about this electromagnetic wave, total there are so many concepts you will be getting in plus 3. Okay. So charge at rest produces only electric field. Charge in uniform motion produces electric field as well as magnetic field, and current carrying conductor produces magnetic field all around it, and an accelerated charge or a charge in oscillatory motion produces electric field, magnetic field, so also it radiates electromagnetic wave. Clear? So what is magnetic field? What is magnetic field?
It is the counterpart of your electric field and gravitational field. We have already discussed about what is electric field, and we have already discussed about gravitational field in 11th class. So magnetic field is nothing but the changed surrounding around a magnet or a moving charge or around a current carrying conductor where its magnetic effects are perceptible. That means they exert force on moving charge. Okay, that means this magnetic field which is produced by this current carrying conductor or uniformly moving charge or accelerating charge, they will exert a force on moving charge and current carrying conductor. Okay, like that. So that is the magnetic field. It is nothing but this changed surrounding around a magnet. A permanent magnet also produces magnetic field. Okay, a charge in uniform motion also produces magnetic field. This current carrying conductor also produces magnetic field. Okay, this oscillatory charge or accelerated charge also produces magnetic field. Okay, so इसके ऊपर बहुत हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले वीडियो में. ओयरस्टेड जो एक्सपेरिमेंट था 1820 में ओयरस्टेड, a great name in physics, performed a simple experiment. From that experiment we could conclude that there is a great relationship between electricity and magnetism. ना 1820 से पहले हमको पता नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच एक रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है, लेकिन 1820 के बाद हमको पता चला. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन. ओके, दे आर इनसेपरेबल. हम आगे भी पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दैट मींस कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, and continuously changing electric field also produce magnetic field. Okay, and by the way they produce this accelerated charge produce electromagnetic wave also, and in this situation the electromagnetic wave travels in this direction, and the changing electric field and the changing magnetic field, this is the direction of B, this is direction of E, and this is the direction of motion or direction of propagation of this electromagnetic wave. इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चैप्टर में. ओके, तो ओयरस्टेड एक्चुअली चेंज्ड द सिनेरियो. he told us that there is a great relationship between electricity and magnetism. When a current flows in a current carrying, that means in a conductor, a magnetic field is produced all around, because when a magnetic needle is placed just near the current carrying conductor, the magnetic needle shows deflection. The deflection of magnetic needle can only be produced by a magnetic field. Okay, so due to that experiment, after that experiment we have concluded that current carrying conductor produces magnetic field. And in my second video we have discussed about how to find out the magnitude as well as the direction of magnetic field, that means magnetic induction, or else it is called magnetic flux density or magnetic field. It is represented by a vector quantity, that is B, represented by a vector quantity B, which is called your magnetic field or magnetic flux density or magnetic induction. So magnetic field is a vector field. It is represented by a vector B vector. Clear to all of you? And Biot and Savart, two scientists, after rigorous experimentation, given us a wonderful law which is called Biot-Savart's law, purely experimental law. And from that experiment he put forward a mathematical form of all the experimental observations and analysis, and given us the formula. Please go through my second video, that is completely on Biot-Savart's law, and Biot-Savart's law is put in mathematical form like this. This dB is equal to mu naught divided by 4 pi I dl. This is my current element, sin theta divided by r square.
This is the mathematical form of Biot-Savart's law. That means the magnitude of the magnetic induction due to a small current element of length dl in which current I is flowing is directly proportional to the strength of the current, directly proportional to the length of the element, directly proportional to the sign of angle between the current element vector and r vector, and inversely proportional to the square of the distance between the current element and the observation point. So in vector form, this Biot-Savart's law can be put in this form: mu naught divided by 4 pi I dl is my current element vector plus this is my r vector divided by r cube. So this is the vector form. Okay. So in the second video, I have concluded the video by giving this relation. Biot-Savart's law मैंने पूरा कंप्लीट किया था और मैं एक मेथड आपको सिखाया था टू हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर. लेकिन मैं आज आपको एक दूसरा मेथड सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे. सो सपोज दिस इज माय स्ट्रेट कंडक्टर एंड दिस इज माय फाइनाइट वायर, फाइनाइट लेंथ का एक वायर जिसमें करंट सपोज फ्लोस फ्रॉम ए टू बी. क्लियर? So I am interested to find out the magnetic field at this position P. ये P पॉइंट में मेरे को मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज मेरे को डायरेक्शन चाहिए. एक मेथड में सेकंड वीडियो में आपको बता रखा हूं, आज और एक मेथड में आपको सिखाऊंगा. यहां मेरे को B चाहिए, यहां मेरे को B चाहिए. चलो यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं. Let the foot of perpendicular be M, okay, and we will consider let the distance be D. इसको D ले सकते हैं, R ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. और यहाँ एक एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, स्मॉल एलिमेंट DL which is at a distance of L from this foot of perpendicular, and यहाँ से हम ऐसे ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट को. तो सपोज दिस इज द एंगल, सो दिस इज माय सपोज आर वेक्टर, दिस माय आर वेक्टर, कुछ भी ले सकते हैं. ओके, इसको एक्स ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कोई बात नहीं. इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी लेते हैं. दिस इज माय थीटा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट द फिगर एंड दिस इज माय 90 डिग्री. Okay, let this be alpha. Clear? So can you tell me, so what is the small magnetic field, okay, due to this small element dl at this point B? So from this Biot-Savart's law we can write this dB is equal to mu naught divided by 4 pi I dl sin theta divided by r square. So this is the expression. Okay, from Biot-Savart's law we can write dV, the small amount of, that means the small magnetic field due to this element only. But we are asked to find out the resultant magnetic field at B due to the whole conductor, that is AB, in which current I is flowing. Let the current flowing in this conductor AB is I. Clear? तो अभी हम क्या करेंगे, अगर ये D होगा तो क्या होगा, ये होगा D sec थीटा होगा, D sec अल्फा होगा. ओके, ये D sec अल्फा हो जाएगा. क्लियर? कोई शक? देखो इसमें सो cos अल्फा इज इक्वल, बताओ, सो cos अल्फा इज इक्वल टू D डिवाइड बाई R. सो D डिवाइड बाई R. सो दिस इंप्लाइज R is equal to D divided by cos alpha. R is equal to D divided by cos alpha. So this implies R is equal to D sec alpha. हो गया? So ये मेरा D sec का alpha हो गया. फिर से देखो यहाँ से और एक काम करते हैं, यहाँ
मैं आपको देता हूं, देखो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 90 डिग्री। एक ट्रायंगल का जो थ्री एंगल्स है इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो यू सी दिस एंगल इज ऑलरेडी 90 डिग्री, सो सम ऑफ these two angles, that means theta plus alpha must be 90 degree. So this implies theta is equal to 90 degree minus alpha. तो sin theta is equal to sin 90 degree minus alpha. So this implies sin theta is equal to sin alpha. Okay, that means I am converting different variables into a single variable, that is alpha. I am converting. Okay, ये मेरा फर्स्ट वन, ये मेरा सेकंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, tan alpha. So you see tan alpha is equal to L divided by D, is equal to L divided by D. So this implies L is equal to D tan alpha. So differentiate the equation. So dl is equal to, d is a constant quantity, it is the fixed distance, that means it is the perpendicular distance, it is the shortest distance, d, okay, sec square alpha d alpha. Now I will change this equation, you see. So this implies db is equal to mu naught divided by 4 pi I, dl is equal to your d sec square alpha d alpha. In place of sin theta I can substitute, this is my cos alpha, sorry, this is my cos alpha. You can see sin 90 minus alpha is equal to cos alpha, so substitute over here. So cos alpha divided by r square, r square means it is your d square sec square alpha. Okay, now different variables are converted into a single variable. Now db equal to mu naught I divided by 4 pi. Okay, d cancels out, 4 pi d. So sec square alpha cancels out, so cos alpha d alpha. Clear? So this is the magnitude of the magnetic induction at this point P due to the small current element in which I current flows and length is dl. So what is the resultant magnetic field at this point P due to the whole conductor, whole current carrying conductor? We have to integrate, but we have to see whether the magnetic field at this point due to all the current elements are in same direction or in different direction. But you see, we will use palm rule. So previous class में मैं आपको palm rule सिखाया था. So ये जो थंब है आपका, ये थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे. देखो करंट की डायरेक्शन में रख रहा हूं थंब को, और जहां मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस तरफ मेरा पाम होना चाहिए. देखो ये, सो इट इज आउटवर्ड, इट इज आउटवर्ड. क्लियर? सो इट इज आउटवर्ड ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स. यू सी इट इज आउटवर्ड ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स. सो दैट इज व्हाई दे अडॉप्ट. सो हम अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो टोटल और रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन at point P is equal to B is equal to integration over dB 0 to B is equal to mu naught constant quantity, I is my constant quantity, 4 constant, pi constant, D constant. Only integration cos alpha, इसको इरेज करते हैं. See, so cos alpha d alpha. Now you can see this alpha varies from minus theta to, इसको मैं नाम दूंगा, और इसको मैं plus theta 1 नाम दे दूंगा. So the limiting value runs from minus theta 2 to plus theta 1. So now integrate. So B equal to mu naught I डिवाइड बाई 4 पाई डी. ये cos अल्फा का होगा sin अल्फा, लिमिटिंग वैल्यूज फ्रॉम माइनस थीटा 2 टू प्लस थीटा 1. सो फाइनली B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई डी. इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2. सो दिस इज द
wonderful formula we have got, and this is the magnitude, the resultant magnetic induction due to a finite current carrying wire at this arbitrary point P at a distance, at a perpendicular distance d from the current carrying wire. So इस एक्सप्रेशन को हम याद रखेंगे. चलो इस एक्सप्रेशन को हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, so that we can solve numerous problems related to straight wire. Mu naught I divided by 4 pi d sin theta 1 plus sin theta 2. ओके, तो चलो अभी क्या करते हैं, इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, तब जाके हमारा जो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा. ओके, बहुत सारा प्रॉब्लम इसके रिलेटेड करेंगे. चलो एक एक प्रॉब्लम को डील करते हैं. चलो एग्जांपल 1. सपोज इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर. अभी हम जो डेरिवेशन किए थे ये फाइनाइट वायर के लिए डेरिवेशन हुआ था, अभी इनफाइनाइट वायर के लिए हम डेरिवेशन करेंगे. तो डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है अगर ये फॉर्मूला हमको मालूम है. देखो ये मेरा इनफाइनाइट वायर है, दिस एक्सटेंड्स and this also extends in this direction. It's an infinite wire. Okay, actually infinite term is a relative term. That means you see, मैं आपको बताऊंगा. देखो ये जो ये वायर भी इतना लंबा एक वायर भी फाइनाइट आपको दिख रहा है, लेकिन इसको हम इनफाइनाइट मान सकते हैं. कब? जब इसका लेंथ, सपोज ये डिस्टेंस होगा, सपोज ये d डिस्टेंस होगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, ये जो P point is my observation point. Okay, current is suppose flowing in this direction, let it be, and this finite length L which appears can be regarded as, can be considered as an infinite wire if this d distance perpendicular distance is much less than the length of the conductor. इसको भी हम इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं. देखो ये जो हथौली का ये जो लेंथ, ये लेंथ को भी आप, इतना लेंथ को आप इनफाइनाइट मान सकते हैं अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट सपोज यहां से 0.000 0.00001 मिलीमीटर अगर होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस यहां से अगर 0.00001 मिलीमीटर होगा, तो ये जो डिस्टेंस इतना छोटा होगा, तो ये जो लेंथ को हम इनफाइनाइट मान सकते हैं. इसीलिए इनफाइनाइट लेंथ इज ए रिलेटिव टर्म. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो ये अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एट ए डिस्टेंस d व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर. तो हम क्या करेंगे, देखो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे. देखो ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा 1, ऊपर जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर जितना होगा ये मेरा होगा थीटा 1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे जितना होगा ये मेरा होगा थीटा 2. क्लियर? तो मेरे को बताओ यहां थीटा 1 कितना है. देखो थीटा 1, तो ये तो ऐसे अनंत तक जा रहा है, ये तो कंडक्टर हमारा अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे खड़ा करना पड़ेगा. ये देखो खड़ा हो जाएगा. So that means ये पूरा अनंत तक जाएगा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. So थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. देखो थीटा 2 के लिए हम नीचे जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे जाओ 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 जाओ. देखो ये तो अनंत तक एक्सटेंड कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी देखो 90 डिग्री हो जाएगा. तो थीटा 2 इज इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री. सो थीटा 2 इज आल्सो 90 डिग्री. थीटा 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा. तो d तो फिक्स है, d तो गिवन है. सपोज I current is flowing, in this conductor. So magnetic induction due to this infinite wire is equal to mu naught I divided by 4 pi d, perpendicular distance is my d, sin 90 degree plus sin 90 degree. So sin 90 1 plus 1 2 and 2 cancels out.
So mu naught I divided by 2 pi d. So this is magnetic induction due to an infinite current carrying conductor. इसको लिख के रखते हैं. So infinite wire. So for infinite wire. Okay. Current carrying conductor. Current carrying conductor. Current carrying conductor. इसको ऐसे लिखते हैं. So B is equal to mu naught I divided by 4 pi d. Okay? कोई डाउट? इसको आप सॉल्व कर सकते थे. ओके? खुद इसको सॉल्व करने जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, वीडियो को पॉज करते हुए इसको सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो. अगर नहीं हो रहा है तो देखो, सब प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम में कराऊंगा आपको. ओके? धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा. तो इनफाइनाइट वायर के बाद एग्जाम्पल 2 में हम कंसीडर करेंगे हाफ इनफाइनाइट वायर. हाफ इनफाइनाइट वायर किसको बोला जाता है? देखो ये ऐसे, दिस इज द सिचुएशन. यहां से शुरू हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो इसको हाफ इनफाइनाइट वायर बोलते हैं. एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज ओवर हियर. So this is my observation point where we are to find out what is the magnetic induction due to this current carrying wire. Okay? हो सकता है इधर करंट फ्लो रहा है, हो सकता है इधर करंट फ्लो रहा है, कोई नहीं. आपको पाम रूल लगा के डायरेक्शन निकालना पड़ेगा. यहां हम डायरेक्शन भी निकालेंगे, यहां नहीं निकाले थे, चलो कोई बात नहीं. So it depends upon the direction of the current in the conductor. चलो पहले डायरेक्शन बताओ, पाम रूल यूज करो. चलो इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा हमको इजी होगा देखने के लिए. देखो ये आराम से हमको ऐसे इजी हो रहा है. तो करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब को रखेंगे और जिधर हमारा पाम का डायरेक्शन होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. तो डेफिनेटली इट इज इनटू द पेज और इनटू द बोर्ड. ओके? सो ये भी याद रखो, आपका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, डी वेक्टर और आपका जो करंट एलिमेंट वेक्टर, डी वेक्टर और करंट एलिमेंट वेक्टर जो प्लेन में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. कीप इन माइंड, इसको माइंड में उतारो. आपका जो डी वेक्टर और जो करंट एलिमेंट वेक्टर, ये दो वेक्टर जो प्लेन में रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसको परपेंडिकुलर होगा हमेशा. ये एक्सप्रेशन हमको बताता है. करंट एलिमेंट वेक्टर और आर वेक्टर जो प्लेन में होंगे उसको बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा. ओके? लेकिन परपेंडिकुलर होगा तो either it is in this direction or in that direction, and that will be determined by palm rule. Clear? So ये जो केस है हमारा, ये अंदर पाम का जो डायरेक्शन अंदर है, इसलिए इसको सर्कल क्रॉस में हम मार्क करेंगे. चलो तो बी बताओ, यहां θ1 बताओ कितना है? θ1 देखो. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर जितना जाना पड़ेगा, बताओ कितना जाना पड़ेगा? ये तो अनंत तक एक्सटेंडेड है. सो डेफिनेटली θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. और परपेंडिकुलर से जितना हमको नीचे जाना पड़ेगा वो होगा हमारा θ2. बताओ θ2 यहां कितना है? θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, because the conductor starts from here itself. Okay? So D तो D है, तो definitely B is equal to, ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, mu naught I divided by 4 pi D times sin 90 degree plus sin 0 degree. So sin 90 becomes 1 and this is your 0. So the formula is mu naught I divided by 4 pi D. So finite वायर के लिए फाइनाइट वायर होगा, सॉरी इनफाइनाइट, हाफ इनफाइनाइट, सॉरी ये हाफ इनफाइनाइट. सो हाफ इनफाइनाइट, सो हाफ इनफाइनाइट वायर के लिए हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई D. ये 2 पाई D था ना, ये 2 पाई D था, सॉरी यहां 2 आया था. sin 90 प्लस sin 90, 1 प्लस 1 2 cancels with this 4, 2 pi D, ये होगा 4 pi D. ओके, सॉरी फॉर दैट. सो प्लीज इसको देख लो. क्लियर हो गया? सो दिस इज इन
हाफ इनफाइनाइट वाई। अगर हाफ इनफाइनाइट वाई का थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं प्रॉब्लम को, देखो अगर मेरा इधर होगा, ये मेरा होगा, एंड दिस इज गिवन टू बी सपोज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी बताओ द सिचुएशन इज नाउ चेंज्ड। सो एग्जांपल 3 में वही हाफ इनफाइनाइट वाई, बट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज नॉट ओवर हियर बट समवेयर एल्स। ओके, तो यहां क्या करना पड़ेगा, देखो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो थीटा 1 तो 90 डिग्री हो जाएगा। सो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा ओवर हियर, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, ये कुछ भी हो सकता है, ये जीरो से लेके आपका 90 डिग्री तक हो सकता है अगर ये इनफाइनाइट वाई होगा। ओके, कुछ भी हो सकता है। सपोज ये आर्बिट्रली मैंने थीटा ले लिया, तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई d। यहां क्या होगा, साइन 90 डिग्री प्लस साइन थीटा होगा, सो साइन 90 बिकम्स 1, सो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई d, सो साइन 90 बिकम्स 1 प्लस साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन होगा। अगर एग्जांपल के अगर इसको हम 45 ले जाएंगे, अगर इसको हम 45 करेंगे तो 45 होगा, तो ये भी मेरा 45 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। ओके, तो कोई बात नहीं, ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, इसीलिए मैं बहुत फास्ट इसको, अगर इसको आप पहले से आपको पता है तो ये सिंपल लग रहा है, तो इसको फॉरवर्ड करो, इसको फॉरवर्ड करते जाओ, लेकिन जो समझ नहीं पा रहा है मैं इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल 4 लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में देखो एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये मेरा प्रॉब्लम है, देखो ये एक स्ट्रेट वायर है, ये अनंत तक इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यहां भी देखो और एक वायर है, यहां भी अनंत तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट वायर है, 2 इनफाइनाइट वायर्स। ओके, current is flowing in same direction in both the cases. Suppose 5 ampere is current flowing in this direction and 2 ampere is flowing 2.5, let it be 2.5 ampere current is flowing in this direction, and the distance of separation, let it be suppose 5 meter, and you are asked to find out what is the, this is distance 2.5, okay, and this is my observation point. You have to find out what is the resultant B at this point due to both the wires. We will use the principle of superposition. Principle of superposition also holds good in case of magnetism, because the presence of the second current carrying conductor will not affect the magnetic field that is produced by the first conductor. So that is the reason for which we use principle of superposition. Okay, so B is equal to B1 plus B2. That means the resultant magnetic field at this point is the vector sum of the magnetic field that is produced by this wire, so also this wire. So let us start. So infinite wire का हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई D, ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। सो B1 प्लस B2, हम पहले देखेंगे ये दोनों का एड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। देखो इसके लिए पाम रूल यूज करेंगे, देखो ये इसके लिए B का डायरेक्शन अंदर, B का डायरेक्शन अंदर, ये B1 का डायरेक्शन, देखो B1 का डायरेक्शन अंदर, देखो B2 के लिए यहां भी देखो थंब इधर रखो, ये भी अंदर जा रहा है, सो B2 का डायरेक्शन B अंदर, तो इसीलिए वो एडॉप्ट हो जाएंगे। दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, सो अलजेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं। तो बताओ B1 कितना है, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, म्यू नॉट I1 कितना है 5 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई D, तो 2 पाई D कितना है, D देखो 5, ये 2.5, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है ये, तो 5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 7.5, ओके क्लियर, प्लस B2, ये कंडक्टर के लिए यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बताओ, सो म्यू नॉट I कितना है 2.5
डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है देखो 2.5, सो 2.5 डिवाइड बाई 2 पाई डी इज 2.5, सो दिस 2.5 कैंसल्स आउट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सो म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई कम्स कॉमन, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 50 डिवाइड बाई 75, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 75 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। सो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3, तो ये आई है ना, यहाँ एक आई है, नहीं ये तो हो गया कैलकुलेशन, आई का तो 5 है, यहाँ 2.5 है, कोई बात नहीं। सो चलो, तो 5 डिवाइड बाई 6 म्यू नॉट डिवाइड बाई 5, ये आंसर है। सो कितना होगा 5 डिवाइड बाई 6 म्यू नॉट डिवाइड बाई 5, दिस इज माय आंसर। क्लियर? थोड़ा सा ट्विस्ट था, वही प्रॉब्लम है, दो कंडक्टर है, जस्ट यू हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोई बात नहीं। चलो, ऐसे वैरायटी प्रॉब्लम हम डील करते हैं, तब तो जाके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको फेस कर पाएंगे एंट्रेंस में। चलो प्रॉब्लम 5 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे आज। सो प्रॉब्लम 5, एग्जाम्पल 5 लेते हैं। सो एग्जाम्पल 5 में हम क्या करेंगे, देखो यहां एक इनफाइनाइट वायर है और यहां भी एक देखो इनफाइनाइट वायर है। Okay, current comes in this wire, its magnitude let it be I, and turns 90 degree, then extends to up to infinity, and you are asked to find out the magnetic field at the point of, at a point that bisects the two conductor. Okay, so ये point में, और ये पॉइंट का सपोज कोई भी कुछ भी ले लो, ये आर है सपोज, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है। अभी मेरे को बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, प्लीज कैलकुलेट। इसको प्लीज मेरा वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां भी देखो दो कंडक्टर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये भी एक इनफाइनाइट वायर है। फॉर्मूला को यूज करने की आपको सीखना चाहिए। ओके, फॉर्मूला को कैसे यूज, ये देखो फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन फॉर्मूला को कैसे हम यूज करेंगे इसको हमको आना चाहिए। फॉर्मूला लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे। जितना आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपका डेवलप होगा। ओके, जितना प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एबिलिटी आपका बढ़ेगा। ओके, आप टाइम भी सेव कर पाओगे। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 मिनट लो, इसको सॉल्व करो, इसके बाद मेरे को देखो। चलो हो गया, चलो देखो होना चाहिए, तो इसको भूल जाओ, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। ये पॉइंट में बी निकालने के लिए हमको पहले ये कंडक्टर, ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। और पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो ये फर्स्ट कंडक्टर, ये मेरा पाम रूल अगर यूज करूंगा तो अगर मैं इसको 1 नंबर नाम दे दूंगा, इसको 2 नंबर नाम दे दूंगा, देखो इसके लिए डायरेक्शन कहां है, अंदर। तो B1 का डायरेक्शन क्या है, अंदर। और B2 के लिए भी देखो, B2 के लिए भी अंदर, तो B2 के लिए भी अंदर अगर होगा तो सिंपली हम ऐड करेंगे। तो एक कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम निकालेंगे और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया आपका काम। 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन सेम है इसीलिए। चलो इसके लिए निकालते हैं। तो इसीलिए हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये अगर पूरा 90 डिग्री होगा, ये अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये तो हमारा 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो योर 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि ये 90 डिग्री है। चलो, तो ये तो एक्सटेंड कर रहा है अप टू इंफिनिटी, तो यहां आपका θ2 कितना होना चाहिए, θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखो θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ1 इज इक्वल टू 45 डिग्री।
देखो थीटा 1 आ गया, थीटा 2 आ गया, लेकिन हमको डी पता नहीं, डी इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये आर है तो ये कितना होना चाहिए, ये होगा आर cos 45 डिग्री, सो इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई √2 होना चाहिए। क्लियर? ये अगर मेरा आर होगा तो ये थीटा 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका बेस, तो ये हो जाएगा r cos 45, सो r cos 45 इज इक्वल टू r डिवाइड बाई √2। चलो फॉर्मूला को यूज करते हैं, ये फॉर्मूला मेरा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइड बाई 4 पाई, सॉरी हाँ ये ठीक है 4 पाई डी कितना है आपका r डिवाइड बाई √2, देखो r डिवाइड बाई √2 तो ऊपर जाएगा, इसको ऊपर रखते हैं √2, ओके, तो यहां कितना हो जाएगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस साइन 90 थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया फिनिश, एंड दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो रिजल्टेंट b के लिए इसके लिए देखो ये 2 को हटा दो, ये 2 को अगर हटा दो तो एक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये और 2 वायर के लिए सेम डायरेक्शन, इसके लिए हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट फील्ड हमको मिल जाएगा। तो इसको एक सॉल्व करते हैं, सो 2 जा ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 को निकालते हैं तो ये √2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई √2 पाई आर, कैलकुलेशन को थोड़ा सा देख लो आपको, 1 डिवाइड बाई √2 प्लस 1, अगर ये √2 को अंदर ले जाएंगे तो इसको थोड़ा सा देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो 2 जा ये √2 को अंदर ले जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ओके, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, देखो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, d इज इक्वल टू r cos 45, d इज इक्वल टू r cos 45, cos 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2 तो r बाई √2, तो r डिवाइड बाई √2, ठीक है कोई बात नहीं, 2 में हम मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 जा तो ये √2, ठीक है, तो √2 को अंदर ले जाएंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 1 बाई √2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन को आप प्लीज देख लो इसको, लेकिन ये डेरिवेशन इस तरह होना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट को आप प्लीज इसको देख लो, अगर कहाँ गलत है तो इसको सुधार लो। चलो तो अभी क्या करेंगे, और एक प्रॉब्लम लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम करते हैं, ये 6 नंबर 6, तो कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा आप देख लो, मैं हो सकता है मेरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है कहां गलत होगा, इसको थोड़ा सा आप देख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई गलत नहीं होगा कभी भी, कॉन्सेप्ट पूरा ठीक बताऊंगा आपको मैं, ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब प्लीज आप थोड़ा सा देख लो इसको। ये देखो एक तीन कंडक्टर, देखो ये करंट का डायरेक्शन सपोज इधर, ये करंट का डायरेक्शन इधर, ये करंट का डायरेक्शन इधर, एंड इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सपोज साइड ए, यहां भी साइड ए, and current flowing in this conductor is I, and you are asked to find out the magnetic induction at this point, B इधर कितना है बताओ, पॉज करो फिर से क्वेश्चन को समझो, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर, ये तो फाइनाइट कंडक्टर है, देखो ये 3 फाइनाइट कंडक्टर, ये एक फाइनाइट कंडक्टर, ये भी एक फाइनाइट कंडक्टर, ये भी एक फाइनाइट कंडक्टर, तीनों फाइनाइट कंडक्टर है, ओके, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन and you are asked to find out the magnetic field at this point P। इसको पॉज करो और मेरे को आंसर बताओ, देखो आंसर देखो, 1 मिनट लो, हो गया, चलो इसके बाद मेरे को देखो, तो ये पॉइंट में मेरे को अभी बताओ, अगर आप इधर देखोगे ये फॉर्मूला का अगर आप देखोगे तो dB इज इक्वल टू 0, देखो dB will be equal to 0 if theta is equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री। मेरा सेकंड वीडियो को देखो, मैं पूरा इलाबोरेटली इसको आपको बताया, कोई भी एक एलिमेंट होगा, कोई भी करंट एलिमेंट होगा, इसके जो एक्सिस बनता है, करंट एलिमेंट का एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा, करंट की डायरेक्शन में थीटा 0 होगा,
करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180 डिग्री होगा। कोई भी पॉइंट ऑन द एक्सिस में d will be equal to 0, dv will be equal to 0 because theta is equal to 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा। along the direction of the current theta is equal to 0, opposite to the direction of the current theta is equal to 180 डिग्री। so theta 0 होगा या 180 डिग्री होगा, ये sin theta 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो इसीलिए आप इधर देखो, ये तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देखो इसके लिए, ये कंडक्टर के लिए करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर होगा और ये पीछे है देखो, तो 180 डिग्री होगा, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये पॉइंट में कुछ मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और इसको भी देखो, इसके लिए थीटा यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये कंडक्टर भी यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, लेकिन यहां 0 हो जाएगा और यहां भी 0 हो जाएगा कोई भी पॉइंट में, यहां भी कोई भी पॉइंट पे 0 होगा। तो बाकी क्या रहा, ये कंडक्टर रहा। तो ये कंडक्टर यहां जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वही होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 करंट कैरिंग कंडक्टर्स व्हिच आर प्लेस्ड व्हिच फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा d, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा कितना होगा, 60 60 60, तो ये हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा आपका 30, ये 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a cos 30 डिग्री। देखो ये 30 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a cos 30 डिग्री। और ये a cos 30 डिग्री हो जाएगा, तो a cos 30 इज इक्वल टू कितना है, √3 डिवाइड बाई 2। तो d हमको मिल गया। तो थीटा 1 कितना है, थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू आल्सो 30 डिग्री। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इतना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इतना। तो अभी हम यूज कर सकते हैं b का फॉर्मूला, b का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी हो गया आपका, देखो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई d, d इज इक्वल टू कितना, d इज इक्वल टू a√3 डिवाइड बाई 2, a√3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स sin 30 प्लस sin 30। तो इसको 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया। sin 30 इज इक्वल टू ओके 1/2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2√3 a पाई a। इसकी कैलकुलेशन पार्ट को देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसको सुधार लो प्लीज, इसको सुधार लो। ओके सो कहां गलत हो गया क्या, देखो ठीक है, अगर ठीक है तो कोई बात नहीं। मेरे को ठीक लग रहा है, आप थोड़ा सा देख लो कैलकुलेशन को, लेकिन मैंने पूरा कांसेप्ट आपको बता दिया। दिस इज माय आंसर, ओके दिस इज माय आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये आपका हाफ हो जाएगा ना, ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ इज इक्वल टू 2, ठीक है कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और यहां एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, और एक देखो ये क्या हो रहा है, ये एक कंडक्टर देखो ऐसे, ये आपका होमवर्क होगा क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट है प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं। ये एक कंडक्टर यहां से आ रहा है, ये तो इन्फिनिट वायर है, यहां में आई करंट आ रहा है और यहां आई करंट जा रहा है, यहां से आके यहां से टर्न ले लिया। सपोज ये इसको हम थीटा मानते हैं, पूरा एंगल थीटा है सपोज, ओके। तो यहां जो बाइसेक्टर होगा, सो यहां r डिस्टेंस में आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं कि नहीं बताओ। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, करो इसको, ओके। तो ऐसे फिर से क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाओगे, ओके। अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका थीटा डिवाइड बाई 2 होगा,
ओके, थीटा डिवाइड बाई 2 होगा। तो आपको फॉर्मूला लगा के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो थीटा 1 भी हम निकाल सकते, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? ये होगा 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 होगा आपका, ये होगा थीटा 1, ये आपका हो जाएगा थीटा 1। थीटा 2 कितना होगा बताओ? ये एक्सटेंड करना है इनफिनिटी तक, तो आपका थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 1 हमको पता चल गया, थीटा 2 भी पता चल गया, म्यू नॉट आई 4 पाई डी, हमको डी चाहिए। अगर डी चाहिए तो क्या करोगे? सो डी इज इक्वल टू, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी कोई बात नहीं, इसको आर कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2, इसको सॉल्व करके देखो हो गया, R1 मिल गया, R2 मिल गया, आपको D भी मिल गया। इसको सॉल्व करो, आपको इधर जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर? तो इसको फिर से 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आंसर आपको आएगा इसको 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर हैविंग 2 इनफाइनाइट वाइज एंड करंट इज इन द सेम डायरेक्शन है। देखो ये अंदर, इसके लिए भी देखो अंदर, इसके लिए भी अंदर और इसके लिए भी अंदर। सो दोनों अगर अंदर होगा तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन भी अंदर होगा। इसको कैलकुलेशन करो, हो जाएगा आपका। चलो मैंने बता दिया। सेम थोड़ा सा ट्विस्ट था प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम 8 की तरफ बढ़ते हैं। सो प्रॉब्लम 8 में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो चेंज प्रॉब्लम। ये और क्या हो रहा है देखो, यहां से एक वायर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इधर आके इधर जा रहा है, करंट यहां आई आ रहा है और इधर जा रहा है। ये डिस्टेंस सपोज d है, ये सपोज डिस्टेंस d है। ये एक वायर और यहां से 90 डिग्री टर्न लेके इधर जा रहा है, और यहां देखो यहां से भी एक इनफाइनाइट वायर है और यहां आके इधर जा रहा है। ओके, ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है। यहां भी आई करंट आ रहा है, यहां से आई करंट जा रहा है, यहां से आई आ रहा है, तो यहां से आई जाना चाहिए। तो मेरे को चाहिए ये O पॉइंट में, ये O पॉइंट में, ये भी D डिस्टेंस है, ये भी D डिस्टेंस है। मेरे को यहां B चाहिए। B इक्वल टू कितना बताओ? फिर से वीडियो को पॉज करो, थोड़ा ट्विस्ट है, नथिंग एल्स, यू कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट इजीली। प्रॉब्लम को थोड़ा सा देख लो, पॉज करके इसको सॉल्व करो, 1 मिनट लो, 1 मिनट में हो जाएगा। हो गया आपका? चलो अभी देखो, अगर हो गया तो देखो, अगर हो गया तो इसको स्किप करके फॉरवर्ड कर दो। जिसका नहीं हुआ मैं उसको बोल रहा हूं वो देखने के लिए। देखो ये जो वायर आ रहा है, देखो ये वायर के लिए ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा, ये तो थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, इसके लिए यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 हो जाएगा, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो बी इक्वल टू 0, इसके लिए बी इक्वल टू 0, और इसके लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये तो हाफ इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, ये तो हाफ इनफाइनाइट वायर हो जाएगा। देखो हाफ इनफाइनाइट वायर, तो इसके लिए देखो क्या डायरेक्शन क्या होगा? देखो ये बाहर डायरेक्शन होगा, बाहर, तो इसके लिए डॉट लगाएंगे। तो B1 रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू, देखो इसके लिए बाहर और इसके लिए भी देखो 0 हो जाएगा, इसके लिए भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन इसके लिए फाइनाइट होगा, ये हाफ इनफाइनाइट वायर हो जाएगा। तो हाफ इनफाइनाइट वायर के लिए इसको भी देखो, थंब का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां? बाहर, तो ये बाहर फिर से, सो ये डॉट, तो B1 डॉट प्लस B2 डॉट, सेम डायरेक्शन, तो ऐड हो जाएंगे। तो B1 कितना है? B1 का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई
कितना 4 पाई डी मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि दो हाफ इनफाइनाइट वायर है वो ऐड कर रहे हैं, सो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, सो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी। सो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर। थोड़ा सा ट्विस्ट था प्रॉब्लम में, कुछ नहीं। ओके चलो वैरायटी प्रॉब्लम को डील करते हैं। बहुत मजा आया। ओके जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और चलो प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो वही प्रॉब्लम को हम चेंज कर देंगे। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज I current flows, side is also A, okay, and you are asked to find out the magnetic field at this centroid. यहां मेरे को चाहिए, बताओ क्या करेंगे? अगेन सिंपल, पहले हम दिखेंगे B इज इक्वल टू B1, B2 और B3। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तीनों को हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे। तीनों को क्या करेंगे? वेक्टोरियली हम ऐड करेंगे। तो वेक्टोरियल अगर ऐड करेंगे, तीनों का अगर डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो हम अलजेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं। चलो देख लो इसको, देखो यहां पाम रूल लगाते हैं, बाहर तो B1 बाहर, B2 देख तो सपोज ये मेरा 1, ये सपोज 2, दिस माय 3 थर्ड कंडक्टर। सो इसके लिए बाहर, इसके लिए भी देखो बाहर, इसके लिए भी देखो बाहर। सो तीनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द व्यूअर, सो दे मस्ट ऐड अलजेब्रिकली। सो अगर अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो B1 तो 3 टाइम्स B1 और 3 टाइम्स B2 और 3 टाइम्स B3, कुछ भी कर सकते हैं हम, because B1 is equal to B2 is equal to B3, we can write 3B1। चलो एक के लिए हम निकालते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये मेरा हो गया D, ये मेरा हो गया D, ये पूरा कितना है, पूरा है A, तो ये आधा कितना होना चाहिए, A/2 होना चाहिए। अगर ये तो पूरा 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो इसको अगर A से लगा देते हैं तो ये कितना होना चाहिए, बताओ ये कितना होना चाहिए, ये पूरा कितना होगा, ये 3 भाग हो जाएगा ना। देखो 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 भाई, ये 1 2 3 360 को अगर 3 भाग करेंगे तो ये पूरा कितना होना चाहिए, 120, तो ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री। तो θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो θ2 इज इक्वल टू आल्सो 60 डिग्री। So θ1 is equal to 60 डिग्री, θ2 is equal to 60 डिग्री। क्लियर? तो बाकी हमको चाहिए D, तो D कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, तो 10 लगाते हैं, 10 थीटा लगाते हैं, 10 60, सो 10 60 डिग्री लगाओ, कुछ भी आपकी मर्जी है। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू देखो A/2 डिवाइड बाई D, A/2 डिवाइड बाई D। सो यहां से D इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 2 10 60 डिग्री, तो आपको D मिल गया। देखो आपको D मिल गया, तो D का वैल्यू यहां से लगाओ, तो देखो ये फॉर्मूला में मैं लगाऊंगा, तो देखो θ1 मिल गया, θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, D इज इक्वल टू आपको भी मिल गया A डिवाइड बाई 2 10 60 डिग्री। तो बाकी क्या है, हो गया आपका प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाइड बाई 3 मैं तो कर दिया पहले से, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई A, ये आंसर आपको मिलना चाहिए। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो मैं कर दिया आपके लिए, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई D के जगह कितना आएगा, ये डिवाइड बाई 2 10 60 का वैल्यू लगा दे, यहां सब्स्टिट्यूट करो, sin 60 प्लस sin 60, इसको कैलकुलेशन करो, 3 में मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलो तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस टाइप का थोड़ा सा आगे,
तो इसको हम रेक्टेंगल कर सकते हैं, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हैं। खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद आंसर करो। देखो करंट सपोज ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में फ्लो रहा है, साइड सपोज ए, करंट फ्लोइंग इन द वायर इज सपोज आई करंट इज फ्लोइंग। ओके, चलो ये आपका जो मिड पॉइंट में बी बताओ, बी बताओ। तो क्या करोगे, पहले क्या करेंगे, देखो सेम डायरेक्शन, ये भी देखो वही डायरेक्शन, ये भी देखो वही डायरेक्शन, ये भी देखो वही डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स b1। ये अगर b1 होगा, इसके लिए सपोज b2 होगा, इसके लिए अगर b3 होगा, इसके लिए अगर b4 होगा, तो 4 टाइम्स b1 और 4 टाइम्स b2 और 4 टाइम्स b3 और 4 टाइम्स b4, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो एक के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे, बिकॉज द डायरेक्शन इज आउट ऑफ द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड टुवर्ड्स द b1। क्लियर? तो b1 कैसे निकालेंगे, चलो 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 ऐसे ऐसे कर देते हैं इसको, d, ये मेरा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ a/2। देखो ये a/2 हो जाएगा, ये पूरा a है ना, तो a/2 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, हो गया आपका 45 डिग्री। तो θ1 इक्वल टू 45 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, d तो मिल गया, बाकी क्या है, तो इज इक्वल टू 4 टाइम्स b। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, डी इक्वल टू a/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे, साइन 45 साइन 45 साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2, 2/√2 मींस इट इज √2। तो कितना हो गया, तो देखो ये 4 कैंसल्स आउट, तो 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए। दिस इज माय आंसर। फिनिश? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो गया? देखो ट्रायंगल करो, इसको स्क्वायर करो, इसको पेंटागन करो, इसको हेक्सागन करो, कुछ भी करो, आंसर निकालो। चलो हेक्सागन करते हैं। देखो ये हेक्सागन है, ये ओके, ये हेक्सागन कर लो। ये साइड सपोज ए है, करंट फ्लोइंग सपोज इन दिस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन चूज करते हैं, चलो कोई भी डायरेक्शन चूज करते हैं, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। ओके, यहाँ मिड पॉइंट में आपको चाहिए। फिर से क्या करोगे, देखो सपोज आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, तो फिर से क्या करोगे, देखो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये सपोज 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 वायर्स, एक वायर जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बाकी सब उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो रिजल्टेंट बी एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू 6 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ देम। ओके, 6 टाइम द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वन ऑफ देम। तो क्या करेंगे, देखो बी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यहां ज्वाइन करो, यहां ज्वाइन करो, ये पूरा एंगल कितना होगा बताओ, तो 360 डिवाइड बाय 6, 360 डिवाइड बाय 6, तो 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना, ये पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये d कितना हो जाएगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। ओके, सो साइड ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, ये आपका d है। तो d इज इक्वल टू आपको निकालना चाहिए, d इज इक्वल टू 10d, सॉरी 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई d। तो यहां से आपको d मिल जाएगा a डिवाइड बाई 2 10 30 डिग्री। तो देखो d आपको मिल गया, θ1 तो मिल गया आपको, θ2 भी मिल गया, θ1 इज इक्वल टू 30, θ2 इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 10 30, सब कुछ मिल गया। b1 निकालो, b1 निकालो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, मल्टीप्लाई करो 6 में, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आपको आंसर मिलेगा 3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए। सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, आपको ये आंसर मिलेगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो θ1 मिल गया, θ2 भी मिल गया आपको, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, d भी आपको मिल गया a डिवाइड बाई 2 10 30। हो गया। चलो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। देखो और एक नई टाइप का प्रॉब्लम, देखो यहां एक इनफाइनाइट वायर है, यहां भी एक इनफाइनाइट वायर है,
क्लियर? ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I एंड इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, एंड दिस टू आर नॉट कनेक्टेड, दिस टू आर नॉट कनेक्टेड। ये वायर को ये वायर टच नहीं कर रहा है, ये वायर को ये वायर टच नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा अभी देखो, यहां एक ऐसे स्क्वायर बनाऊंगा, ये एक स्क्वायर है, तो ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B, ये मेरा C, ये मेरा D पॉइंट है। ओके, तो मेरे को बताओ ये A पॉइंट में, B पॉइंट में, C पॉइंट में और D पॉइंट में कौन सा पॉइंट में मेरा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और कौन सा पॉइंट में जीरो नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ये A, B, C, D चारों पॉइंट में से इज देयर एनी पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो? देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखो, देखो आप बताओ वेयर V इज इक्वल टू जीरो। देखो, तो देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन इस कंडक्टर के लिए A पॉइंट में देखते हैं, पहले A पॉइंट में बाहर होगा, बाहर देखो A पॉइंट में बाहर होगा। लेकिन ये जो सेकंड कंडक्टर, ये मेरा फर्स्ट कंडक्टर इसको नाम देते हैं, ये सेकंड कंडक्टर नाम देते हैं, ये सेकंड कंडक्टर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन देखो अंदर प्रोड्यूस करेगा। देखो पाम रूल बोलता है कि ये अंदर प्रोड्यूस करेगा, तो अंदर प्रोड्यूस करेगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट B एट A इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? चलो B को आते हैं। तो B में देखो ये जो फास्ट कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड जितना भी करेगा, लेकिन कहां करेगा? बाहर करेगा। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और इसके लिए देखो, इसके लिए भी बाहर होगा, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। तो B मैग्नेटिक फील्ड एट B नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों ऐड हो जाएंगे। और C में अगर आएंगे तो C में क्या होगा? C में क्या होगा? C में करंट का डायरेक्शन देखो, ऐसे ये देखो, ये ऐसे अंदर अंदर, ये फास्ट के लिए अंदर, ये अंदर, और इसके लिए देखो बाहर, इसके लिए बाहर। तो यहां कैंसिल हो जाएगा, तो B एट C इज इक्वल टू जीरो। और D को आइए, तो यहां से देखो फास्ट के लिए पहले देखते हैं। फास्ट के लिए देखो अंदर, फास्ट के लिए अंदर, और सेकंड के लिए B अंदर, सेकंड के लिए भी अंदर। तो यहां भी जीरो नहीं होगा, B एट D नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में था कौन कौन सा पॉइंट में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो A पॉइंट में और C पॉइंट में हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ड्यू टू दिस टू infinite current carrying conductors which are placed perpendicular to each other but not touching each other. क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये एक टाइप था, चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो आपको ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां एक कंडक्टर है जिसमें 5I करंट हो रहा है। This is a conductor. This circle dot indicates that current carrying conductor is perpendicular to this board, but current is flowing from in to out. अंदर से बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें 5I करंट फ्लो हो रहा है। और यहां भी एक कंडक्टर है जहां करंट फिर से अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन 2I करंट फ्लो हो रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है? ये जो लाइन में एक पॉइंट है जहां रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ये लाइन में कोई भी एक पॉइंट है
जहां रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो वो पॉइंट, ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से, दैट मींस बी कंडक्टर बी से, इसको कंडक्टर बी मानते हैं, इसको कंडक्टर ए मानते हैं, बी कंडक्टर से कितना दूरी में है, इसको निकालना चाहिए हमको। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस एक्सियल लाइन वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ड्यू टू बोथ द कंडक्टर्स। चलो निकालते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको x मानते हैं, ये सपोज arbitrary point, we don't know where is the point, let this point be the point where the resultant magnetic field is 0, हो सकता है। ओके, पहले देख लेते हैं पाम रूल लगा के। देखो ये, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर होगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर होगा, और इसके लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे होगा। तो डेफिनेटली यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। और मेरे को लग रहा है थोड़ा सा 2 एम्पियर की करंट की तरफ होगा, क्योंकि ये करंट कम फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये तो थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करेगा, इसमें 5I करंट फ्लो कर रहा है, ये तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए वो पॉइंट थोड़ा सा 2 एम्पियर की तरफ होना चाहिए, ये कंडक्टर की तरफ होना चाहिए, इसलिए मैंने उस तरफ कर दिया। और बाकी जितना रहा मेरा, कितना हो गया, 6 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? तो चलो फॉर्म लगाओ, इसके लिए कितना है, देखो ये तो इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी। तो म्यू नॉट आई इज इक्वल टू 5I, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई कितना, 2 पाई डी, डी इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, d is equal to 6 minus x is equal to, magnetic field must be equal in magnitude but opposite in direction, that is the reason for which the resultant magnetic field is 0 at this point. So इसके लिए कितना हो जाएगा, mu naught I, that means 2I divided by 2 pi d, d is x, so this mu naught by 2 pi, I cancels out, so 5 divided by 6 minus x is equal to 2 divided by x. सो इसको सॉल्व करते हैं, तो 5x, सो देखो 5x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, सो 7x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 7। सो ये जो आंसर मेरा x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर में हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम को चेंज कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम को चेंज कर रहा हूं। देखो 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 देखो, इसको मैं क्रॉस लगा दूंगा, प्रॉब्लम चेंज हो गया। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस करेगा, ऊपर, इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, इस तरफ अगर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होना चाहिए, और इसके लिए देखो क्या होना चाहिए, नीचे, इसके लिए नीचे होगा। तो किधर होना चाहिए, यहां तो नहीं होगा, यहां तो रिजल्टेंट फील्ड हमको 0 नहीं मिलेगा, उस तरफ हमको जाना पड़ेगा। ओके, तो यहां से सपोज x डिस्टेंस में हमको मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा तो 6 हो गया, ये पूरा आपका 6 हो गया, तो ये 6 प्लस x हो गया, तो इसके लिए ये 6 प्लस x हो जाएगा, और इसके लिए x हो जाएगा। तो थोड़ा सा फिर से सॉल्व करते हैं इसको, 6 प्लस x कर दो, तो ये इसको प्लस कर दो, तो ये हो गया आपका 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, लेकिन आंसर पूरा अलग हो गया, और न्यूट्रल पॉइंट जो रिजल्टेंट फील्ड 0 होगा वो कहां मिलेगा आपको, उधर मिलेगा, उस तरफ में आपको मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शायद वीडियो लंबा हो गया है, देखते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कैसे, कितना टाइम हो गया देखते हैं। हाँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, चलो इधर खत्म करते हैं। हाँ 1 घंटा 15 मिनट हो गया, हो सकता है आप बोर हो जाएंगे। एक बढ़िया प्रॉब्लम था, मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से सॉल्व करूंगा। एक वायर है जिसका लेंथ है 2 पाई आर, जिसका लेंथ है 2 पाई आर, एक वायर का लेंथ 2 पाई आर,
इसको मैं क्या करूंगा, n साइडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, इट इज कन्वर्टेड इनटू n साइडेड polygon in which I current is flowing. क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बताने की एक मतलब है, इसमें एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन हमको भी मिलने वाला है आगे। ओके, एक एन साइडेड पॉलीगॉन मैंने बना दिया एक वायर को, जिस वायर का लेंथ है 2 पाई आर। ओके, तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो पूरा एन साइडेड पॉलीगॉन बन गया, इसकी जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, इसको कैलकुलेशन करो। अगर ये मेरा फर्स्ट केस है, ये मेरा फर्स्ट केस है क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको पूछ रहा हूं, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ जो एन साइडेड पॉलीगॉन मैंने बनाया, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, इस सिचुएशन में b इज इक्वल टू कितना होगा। देखो देखो देखो, थोड़ा सा सोचो प्लीज, इस प्रॉब्लम को सोचो। ये प्रॉब्लम को मैं पूछने की एक इसके पीछे कुछ कारण है। देखो, अगर ये जो पॉलीगॉन n साइडेड है, इसको n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर मैं कर दूंगा, तो देखो इतना, ये छोटा 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 इतना छोटा हो जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन ए पॉलीगॉन बिकम्स ए सर्कल। ये करंट कैरिंग लूप बन जाएगा, सर्कुलर लूप बन जाएगा। ओके, इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इसके लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सेंटर में, इसका आंसर हमको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, लेकिन इसको निकालने की एक दूसरा तरीका भी है, जो तरीका हम नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव करेंगे, आसानी से हमको मिल जाएगा। लेकिन ये भी एक तरीका है, स्ट्रेट कंडक्टर की नॉलेज को लेके हम पॉलीगॉन बनाएंगे। पॉलीगॉन को ऐसे बनाएंगे जैसे कि कितना साइड होगा, इनफाइनाइट अगर साइड हो जाएगा तो वो बन जाएगा सर्कल, तो सर्कल की सेंटर में हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ये एक मेथड है, और दूसरा मेथड तो आराम से हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं ऐसे भी, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके।